Hello students and welcome to the fourth lecture of the lines in three-dimensional. In the last class we discussed few problems about the line or about the angle between line and a plane, the point of intersection of a line and a plane. Okay, in this class we are going to discuss the image of a point with respect to a plane and a line. Image and the foot of perpendicular. In this class we are going to discuss the image and foot of perpendicular. Foot of perpendicular of a point with respect to a plane फर्स्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लाइन भी डिस्कस करेंगे. ओके फर्स्ट केस में है क्या, देखो सपोज एक पॉइंट है, एक दिस पॉइंट, इसका x1, y1, z1 है. दिस इज ए प्लेन माय डियर स्टूडेंट्स. सो इक्वेशन इसका है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू b. So now we are going to find out the image of this point with respect to this plane. इस प्लेन को सोचो एक प्लेन मिरर है. ओके, थिंक दिस इज ए मिरर. तो इसकी जो इमेज है, परछाई, वो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जहाँ पे है उसी डिस्टेंस पार करते हुए दिस इज द ऑब्वियसली दिस विल बी द इमेज, दिस विल बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P, एंड ये जो है दिस इज आवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर. लेट्स से दिस पॉइंट इज N, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये दोनों पॉइंट को हम निकालेंगे. तो ये कैसे आएगा, देखो हाउ कैन वी फाइंड दिस टू पॉइंट्स. फर्स्टली ये जो A, B और C क्या है? A, B, C इज द DRS ऑफ द नॉर्मल. ओके, A, B, C is the DRS of normal obviously. मतलब जो, और PN act as a normal. PN क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और PN अगर परपेंडिकुलर है तो PN तो नॉर्मल के एक्ट कर रहा है कि नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है? अगर नॉर्मल का रोल प्ले कर रहा है तो इस PN की DRS क्या होगा? सो द DRS ऑफ PN विल बी PN एक नॉर्मल. PN इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो DRS ऑफ PN क्या होगा? इज ऑल्सो A, B, C. DRS ऑफ PN ऑल्सो A, B, C. समझ में आया कि नहीं? सो DRS ऑफ PN A, B, C है. मतलब वी कैन इजीली फाइंड आउट. तो P हमें पहले से दिया हुआ है, PN का DRS पता चल गया, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द DRS. सॉरी, we can find out the equation ऑफ लाइन PN के आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं. अगर इक्वेशन आ गया देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PN एंड द प्लेन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PN and plane is your
foot of perpendicular, foot of perpendicular, and p dash will be the image. अगर p dash कैसे निकालेंगे, and n is the midpoint of p and p dash, so we can easily find out the image of this. So एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. Okay, let's take an example. Find the image of point 2, -1, 2, -1, 3 with respect to the plane, with respect to the plane 3x minus 2y plus z minus 9 is equal to z. 3x minus 2y plus z minus 9 is equal to 0. Find the image of the point. तो यहाँ क्या होगा, देखो ये प्लेन है, दिस इज योर प्लेन, और इसका इक्वेशन है 3x minus 2y plus z minus 9 equal to 0, and this point is 2, this point is 2, -1, 3. तो इस पॉइंट क्या होगा, इस ये पॉइंट क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट. तो फर्स्ट दिस इज ए पॉइंट P, इसको हम n ही मानते हैं. So Pn is a normal to the plane, this 3x minus 2y, 3x minus 2y plus z minus 9 equals to 0. So DRS of Pn would be is 3 minus 2 and 1. ये आपका DRS ऑफ Pn है. सो इक्वेशन ऑफ Pn विल बी, ये पास कर रहा है 2 minus 1 3 से, सो x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by minus 2 is equals to z minus 3 by 1 is equals to z minus 3 by 1. So now we are going to find out the point of intersection, जो कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका n को हम इसी लाइन के फॉर्म में लिख देंगे. सो सपोज लेट दिस इज इक्वल्स टू r, लेट ऑल दिस थिंग इज इक्वल्स टू r. तो x कितना हो गया 3r plus 2, y कितना हुआ -2r minus 1, and z is your r plus 3. x निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया. तो x is 3r plus 2, y is -2r plus 1 and z is r plus 3. तो इस n पॉइंट का n पॉइंट को हम r के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, दिस इज 3r plus 2 -2r minus 1 and r plus 3. This is your point n in form of r, and hence the n is lie on the plane. It should be satisfy the equation of plane. It should be satisfy the equation of plane. That's why we have 3x minus 2y plus z minus 9 equals to 0. So 3 times 3r plus 2 minus 2 times minus 2r minus 1 and plus this is r plus 3 plus r plus 3 minus 9 is equals to 0. So now we are going to find out the value of r.
Okay, now we are going to find out the value of r by solving the equations. Okay, इधर आ जाओ. तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 3 इंटू 3r प्लस 2, 3 इंटू ये 9r, दिस इज 9r प्लस 6 प्लस 4r प्लस 2, देन r प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो 9r प्लस 4r 13r प्लस r इज 14r. 14r, ये हो गया 6 प्लस 2 is 8. 8 minus 9 is minus 1 is equals to 0. So your r is equals to 1 by 14. r is equals to 1 by 14. Let's check it out again, guys. So first equation आ गया x minus 2 by 3, y plus 1 by minus 2, z minus 3 by 1. So r के फॉर्म में 3r plus 2 minus 2r minus 1 r plus 3. So 3 times 3r plus 2 plus 3. 6 plus 2 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 minus 9. 11 minus 9 is 2. So this is minus 2 by 14. So this equals to minus 1 by 7. तो r का वैल्यू निकला minus 1 by 7. तो n पॉइंट क्या है? We know the n point is obviously 3r plus 2, comma minus 2r minus 1, comma 3r plus 3. So r की जगह ये पुट अप करेंगे तो दिस विल बी n हो जाएगा minus 1 by 7 minus 3 by 7 plus 2, minus 3 by 7 plus 2, ये कमा 2 by 7 minus 1, कमा minus 1 by 7 plus 3. So n हो जाएगा, दिस इज 14 minus 3 is 11 by 7 minus 5 by 7, or this is 21 minus 1, 20 by 7. So this is your foot of perpendicular. अगर क्वेश्चन आएगा कि find the foot of perpendicular, then this is your answer. This is the foot of perpendicular of the plane P with respect to that point. So now suppose इसका कोऑर्डिनेट, इस p डैश का कोऑर्डिनेट लेट्स से x डैश y डैश एंड z डैश, लेट्स से x डैश y डैश और z डैश. इसका मतलब क्या है? x प्लस x डैश बाई 2 इज इक्वल्स टू, p का कोऑर्डिनेट मतलब 11 by 7 होगा. सो x डैश वुड बी मस्ट बी इक्वल्स टू 2 इंटू 11 by 7 minus x वाला पॉइंट. So 2 into 11 by 7 means 22 by 7 minus 2 जो कि हो जाएगा आपका 14, मतलब 8 by 7. सिमिलरली आपका y डैश कितना हो जाएगा? 2 into y कोऑर्डिनेट्स, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट्स जो है minus 5 by 7, और यहाँ माइनस वाई है लेकिन माइनस अब माइनस 1 होगा, सो -10 प्लस 7 by 7, तो इट इज -3 by 7. सिमिलरली आपका z डैश हो जाएगा 2 इंटू z कोऑर्डिनेट, दैट इज 20 by 7 माइनस
z coordinate that is 3. So 40 minus 21, 40 minus 21 is obviously 19 by 7. So this is your answer. So p dash का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8/7, 8/7, minus 3/7, 19/7, and this is your answer, my dear students. So pause the video to note it down. Moving on to our next question. Obtain the foot of perpendicular drawn from the point 3 minus 1 11 to the line x by 2 is equals to y minus 2 by 3 is equals to z minus 3 by 4, and find the image and the equation of perpendicular as well. So हमें एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दे रखा है, उसका इक्वेशन x by 2 इज इक्वल्स टू y minus 2 by 3 इज इक्वल्स टू z minus 3 by 4 इज इक्वल टू सम r लिख देते हैं। और एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -1, 11। तो हमें चाहिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट चाहिए N, देन इसका इमेज चाहिए और इस Pn की इक्वेशन भी चाहिए। देखो ठीक है। फर्स्ट द जनरल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, किस कोऑर्डिनेट्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑफ लाइन, generally we can write the coordinates of the line is x is equals to 2r, x is equals to 2r, then y is equals to 3r plus 2, and z is equals to 4r plus 3. Okay, this is the, so we can write the coordinate n can be written as this 2r, 3r plus 2, 4r plus 3. तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ n हो गया। n का दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द n. So we need to find out the value of r. तो how can we find out the value of n, value of r? So हमें ये कंडीशन यूज करना है कि ये जो Pn is this line is L, let me say the Pn is perpendicular to the line L. Okay, and what is the DRS of L, my dear students? DRS of the line is obviously 2, 3, 4 is the DRS of line. You got it? Then the DRS of Pn would be is 2r minus 3, then 3r plus 2 minus plus 1, and 4r plus 3 minus 11. So इसको सॉल्व किया जाए तो 2r minus 3, 3r plus 3, 4r minus 8, this is the DRS of Pn, and hence the Pn is perpendicular to L. Their dot product is 0. So we can write 2 times 2r minus 3 plus 3 times 3r plus 3 plus 4 times 4r minus 8 plus 4 times 4r minus 8 is equals to 0. So क्या हो गया ये 4r minus 6, 9r plus 9, 16r minus 32 is equals to 0. So ये मिल गए तो 4r plus 9r 13r, 13r plus 16r is 29r, minus 6 plus 9 is plus 3, 3 minus 32 ये भी minus 29 equals to 0. So we have clearly r is equals to 1. r is equals to कितना हुआ? 1 हुआ। हम इसके जगह r की जगह 1 पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ r, put the value
the value of r is equals to 1, so we get 2 into 1 is 2, 3 into 1 plus 2 is 5, 4 into 1 plus 3 is 7. So this is the foot of perpendicular of n, is foot of perpendicular of the point P with respect to the line. तो एक पार्ट कंप्लीट. अभी हमें निकालना है इमेज. लेट इसका पॉइंट है एक्स डैश प्लस वाई डैश, सॉरी एक्स डैश कमा वाई डैश कमा जेड डैश. इसका मतलब ये है कि एक्स डैश प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू बाई 2 इज इक्वल्स टू द मीट पॉइंट. मीट पॉइंट इज क्लियरली हमारा 2. तो क्लियरली आपका एक्स डैश हो गया आपका 2 into 2 4 minus 3 is 1. देन वाई डैश प्लस वाई कोऑर्डिनेट इज -1/2 is equals to our this coordinate, that is 5. So clearly y dash will be 5, 10 plus 1 11. Then z dash plus 11/2 is equals to our 7. So we can write z dash is equals to 3. So 1, 11, 3 is the image. 1, 11, 3 is the image of point P with respect to the line. Then we can easily find out. देन हमें क्या ये पॉइंट चाहिए, दिस पॉइंट, वी नीड दिस पॉइंट. ये पॉइंट मिल गया, सॉरी. अभी हम इक्वेशन चाहिए टू फाइंड द इक्वेशन व्हाट द DRS ऑफ Pn. लेट मी से द DRS ऑफ Pn. ये R के फॉर्म में था. अगर यहाँ 1 हम पुट करते हैं तो 2 into 1 minus 3 is -1, 1 5 होगा. Then 4r, so 3r plus 2 plus 3, तो 6 होगा. 6, this would be 6, and this would be 4 minus 8 is -4. तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर. इक्वेशन ऑफ Pn इज, पॉइंट तो हमें दे रखा है x -3/-1 is equals to y minus plus 1/6 equals to z minus 11/-4. ये कैसे हुआ? हमें पॉइंट तो पता है P, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x minus x0/a is equals to y minus y0/b is equals to z minus z0/c. तो x0, y0, z0 ये है आपका 3, -1 and 11, and a b c is, यहाँ से हम DRS निकाल लेते, एंड दैट इज -1 6 -4. ओके, इस पॉइंट को तुम ये पॉइंट को भी ले सकते हैं, एन पॉइंट को भी हम टू इसके मतलब 3 वो -1 और 11 की जगह हम 2 5 7 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो दैट्स इट. इस क्वेश्चन में बस इतना ही, आप नोट कर लो इसको. Next we are going to discuss these problems. The first question is, let's say this is 1, 2 and 3. पहले से हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. Find the distance of the point 1, -2, 3 from the plane x minus y plus z equals to 5 measured parallel to the line x by 2, y by 3 and z by -6. For this ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखो, हमें एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस हमें निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है. मेजर पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन दिया है, उस लाइन का इक्वेशन है x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/-6, एंड उसी के पैरेलल जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हमें निकालना है.
ओके तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन के बाद हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हम डिस्टेंस फार्मूला से इजीली हम निकाल सकते हैं। गॉट इट? इतना समझ में आया? फर्स्ट हमें लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन के लिए दो ठो चीज़ चाहिए, एक इस लाइन का DRS और एक पॉइंट। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमें चाहिए DRS। DRS कैसे मिलेगा? ये लाइन इससे पैरेलल है, मतलब इसके DRS सेम है, तो इसके DRS कितना हुआ? इसका DRS 2 3 6 है, तो इसका DRS भी 2 3 -6 होगा। एक पॉइंट दिया हुआ है 1 - 2 3, 1 - 2 3, so now we can easily find out this point. Now let us find out the equation. This is P and this is, let's say, Q, and ये है line L. We have to find out, let us find the equation of PQ का इक्वेशन हमें फर्स्ट पहले निकालना है। ओके, सो PQ इज पैरेलल टू द लाइन L, सो DRS ऑफ PQ क्या हो जाएगा? 2 3, -6 is the DRS of PQ. So and point P हमें दिया हुआ है कि that is 1 - 2 3. So now equation of line is x - 1/2 is equals to y + 2/3 is equals to z - 3/-6 is equals to some r लिख लो, and this is the, my student, equation of the line. This is the equation of line. Now we are going to find out the point of intersections. तो इस point of intersection के लिए हम इसकी general term लिखते हैं। ओके, general point ऑफ द लाइन PQ का जनरल पॉइंट, तो x इज इक्वल्स टू हो रहा है 2r + 1, y इज इक्वल्स टू हो रहा है 3r - 2, एंड z इज इक्वल्स टू हो रहा है -6r + 3, -6r + 3। ये आपका x y z हो गया। देन this point, so we can say the coordinate of Q, the coordinate of Q is in terms of r क्या है? That is, we can write 2r + 1, 3r - 2, and -6r + 3. Okay, these are the coordinates of Q. These are the coordinates of Q. So अब हमें ये Q point lie on the plane. This Q point lies on the plane. कौन सा प्लेन पे है? This is in the plane x - y + z = 5. x - y + z = 5. सो क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई करा दो, इट नॉट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो 2r + 1 - 3r - 2 प्लस -6r + 3 = 5 है। सो 2r - 3r - 6r + 1 + 2 + 3 = 5। सो कितना हुआ यार? ये 2r - 3r is -r - 7r। सो x - y तो ठीक है ना, ये -3 है, -2 and -6r + 3. Nice. So this becomes -7r plus ये 2 3 5 कैंसिल हुआ, -1, so r is equals to +1 = 0, so r is equals to we can write 1/7। तो r की वैल्यू 1/7 है। तो Q पॉइंट क्या होगा अभी?
द पॉइंट Q विल बी, पॉइंट Q क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/7 प्लस 1 कॉमा 3 इंटू 1/7 माइनस 2 कॉमा माइनस 6 इंटू 1/7 प्लस 3। तो Q 9/7, ये 3 माइनस 7 क्या होगा यार, -4/7, so 3 minus 14 is -11/7, and this will be -6 plus 21, so 15/7. So this is your point Q. Now you need to find out the PQ. PQ क्या होगा, 9/7 minus P का कोऑर्डिनेट्स is 1, इसका स्क्वायर प्लस -11/7 प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर, और 15/7 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर का रूट ऑफ हर, जो हो जाएगा आपका 9 minus 7 is -2, -2/7 का स्क्वायर होगा 4/49 प्लस 14, 3/7 मतलब 9/49 प्लस दिस इज -6/7 36/49, इसका अंडर रूट, तो ये 13 प्लस 36 49/49, 49/49 which is 1 unit. This is your answer. ओके, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। अभी मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस, और कोई छोटा सा पोर्शन छूट गया, एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन दे रखा है, इट इज x + 2/2, x + 2/2 इक्वल्स टू y - 3/-3, y - 3/-3 एंड z - 4/-8, ये आपका लाइन दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 1 10 फ्रॉम द लाइन, मेजर parallel to the line, x + 2/2 equals to y - 3/-3 and z - 4/8, repeat, this is -3, okay। बस, तो बस यहाँ डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है कि हमें यहाँ भी एक लाइन दिया है, यहाँ भी एक लाइन दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, दो ठो लाइन के बीच में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, बस यही डिफरेंस है। तो इस इक्वेशन का लाइन है x + 2/2 इक्वल्स टू y - 3/-3 इक्वल्स टू z - 4/8। तो इस पॉइंट दे रखा है 1 - 1 एंड 10, इस पॉइंट दिया है 1 - 1 10। तो हमें फर्स्ट ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसका डी आर है पी क्यू, DRS ऑफ PQ, DRS ऑफ PQ कितना होगा, obviously 2 - 3 and 8। So equation of PQ would be x - 1/2 equals to y + 1/-3 equals to z - 10/8।
8 equals to R, and this is the equation of PQ. तो इसका जनरल टर्म से जनरल पॉइंट ऑफ दिस पी क्यू क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट ऑफ पी क्यू, दिस बिकम पी क्यू का जनरल पॉइंट x माइनस, तो 2r+1, फर्स्ट 2r+1, सेकेंड में -3r प्लस -1, थर्ड में 8r+10, 8r+10. ओके, नेक्स्ट हम ये भी तो हमें लाइन दिया है, दिस लाइन इज ऑल्सो गिवन. ये लाइन का इक्वेशन कितना है, x माइनस 4/1 इक्वल्स टू y प्लस 3/-4 इक्वल्स टू z प्लस 1/7. तो इक्वल टू, अगर r के बदले यहाँ हम m लिखते हैं, तो जनरल पॉइंट ऑफ हम अगर देखते हैं कि L लाइन, तो इस केस में x इज इक्वल्स टू हो गया m+4, y इज इक्वल्स टू हो गया -4m -3, और ये पॉइंट हो गया z इज इक्वल्स टू 7m -1. ओके, 7m -1. नाउ हमें अभी करना क्या है कि ये दो ठो पॉइंट को इक्वेट करना है. देखो, ये दो ठो पॉइंट हमें जो चाहिए, इस पॉइंट चाहिए और इस पॉइंट के, जब इस पॉइंट को हम इस लाइन के थ्रू से भी लिख सकते हैं और इस लाइन के थ्रू से भी लिख सकते हैं, तो हमें m और r दोनों की वैल्यू चाहिए. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड r सच दैट ये 2r+1 becomes m+4, 2r+1 becomes m+4. ऑब्वियसली 2r माइनस m इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आ गया. और एक ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो -3r -1 इज इक्वल टू -4m -3. सो 3r+1 इक्वल टू 4m +3. सो 3r -4m इज इक्वल टू 2. 3r -4m इज इक्वल टू 2. अभी हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड अगर यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी. एलिमिनेशन अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 4 बस, और 4 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो 8r माइनस 3r इज़ 5r, ये तो 0 हो जाएगा. एंड 4 3 12 -2 इज़ 10. सो r का वैल्यू मिल गया 2. r का वैल्यू अगर 2 है तो दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू m+4 है, तो m की वैल्यू आ जाएगा हमारा 1. तो r की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1 है. अभी चेक कर लेते हैं ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. दोनों केस में सेटिस्फाई होना चाहिए यार, ठीक है. ये 5 है, -6 -1 तो -7 है ये. एंड दिस इज 8 × 2 16 26, बहुत बड़ा नंबर है. 8 × 2 -10 है ये कि +10. z माइनस इक्वेशन ऑफ PQ 1 -1 10 8r + 10 -8r की सो ये m इज इक्वल टू R26 है. यहाँ अगर सेटिस्फाई करके देखेंगे तो ये भी 5 आ रहा है. दिस इज ऑल्सो -1 -7 आ रहा है. And but this is the disturbing elements. So
कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी चेक। सॉरी, दिस इज -10 डियर, दिस पॉइंट इज -10, तो यहाँ पे बस +10 होगा और यहाँ पे बस -10 होगा, तो इट विल बी 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ था, लिखा था मैं ये -10 ही है, दिस इज -10 एंड ये आपका इक्वेशन निकालने में DRS सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज Z + 10/8, तो ये 6 मतलब सेटिस्फाइड हो गया। ओके, दिस इज सेटिस्फाइड। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा, कोप्लेनर नहीं होगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोप्लेनर नहीं होगा तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समझ में आया कि नहीं। सो अभी हम दोनों पॉइंट निकाल देते हैं। तो P पॉइंट है, तो P पॉइंट तो हमें गिवन है, P पॉइंट इज 1 -1 -10 एंड अभी जो Q पॉइंट निकला दैट इज 5 - 7 6, 5 - 7 6। ये हमारा मेरा रफ वर्क है, इसको तुम थोड़ा सा ठीक से लिखना, बस इतना ही। उसके बाद वी कैन इजीली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r is equal to 2 and m is equal to 1, we get the value q, point q is equal to 5, -7, 6. Now pq is very simple, 5 - 1 4 का स्क्वायर, -7 + 1 -6 का स्क्वायर, 6 - -10 तो 16 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया 16 + 36 + 16 का स्क्वायर है 256, so this will be 668 18, then 6 + 3 9 + 1 10 0 308 का अंडर रूट, 308 का अंडर रूट। और 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 7 × 28, 7 × 28, there is 2 7, so 77√2 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस एक थोड़ा सा समराइज, ये 1, -1, -10 था। इस पॉइंट का आप इस लाइन दे रखा है, इसका DRS 2 - 3 8, तो इसका DRS भी 2 - 3 8, इसका इक्वेशन x - 1/2 y + 1/- 3 z + 10/8 इक्वल्स टू r। ये मिल गया हमें, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में मिल गया, दोनों को ऐसे कंपेयर करोगे तो दिस पॉइंट विल गेट। सो नोट कर लो इसको। Next question number 3. I hope the question is right. Okay. Find the equation of the plane through the point 2, 0, -3. Equation of plane निकालने के लिए बोला है। And containing the line this. ये लाइन देखो ऑन सिमेट्रिक फॉर्म में दिया है, ऑन सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन दिया है। लाइन दिया है 3x + y - z - 5 = 0 और x - 2y + 4z + 4 = 0। तो ये कैसा टाइप है, ये दो प्लेन का मतलब लाइन को हम पेयर ऑफ प्लेन्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि द पेयर ऑफ प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होता है एंड दैट इज ए लाइन होता है। पेयर ऑफ प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज ए लाइन। तो ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से सोचोगे, तुम प्लेन से थोड़ा सा रिलेटेड करोगे, तो दिस लाइन इज नथिंग बट इज द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। एंड अब हमें निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेनिंग दिस लाइन। विच कंटेनिंग दिस लाइन्स मीन्स द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, सॉरी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। तो अभी हम इसको P1, इसको हम P2, और अगर वो पॉइंट किस फॉर्म से जा रहा है, किस लाइन से जा रहा है, दैट इज की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पॉइंट्स, मतलब वो दो प्लेन का इंटरसेक्शन पे वो पॉइंट पास कर रहा है। अगर वो पॉइंट दो प्लेन की इंटरसेक्शन, ठीक है,
the required plane is passing through the line of intersection of these two planes. The required plane is passing through the line of intersection of these two planes. इसका मतलब हमारे पास तो फॉर्मूला p1 plus lambda p2 is equals to 0. p1 plus lambda p2 is equals to 0. So we can find out that is the equation of the plane that passing through the equation of passing through the intersection of p1 and p2. So p1 आपको दिया है 3x प्लस y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्बडा इंटू x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. So 3 plus lambda x 1 minus 2 lambda y minus 1 plus 4 lambda z minus 5 plus 4 lambda is equals to 0. So this is the equation of the plane. Now this is passing through 2, 0, minus 3. So hence this is passing through, hence it is passing through 2, 0, minus 3. So we can write, so 3 plus lambda into 2, 1 minus 2 lambda into 0 plus minus 1 plus 4 lambda into minus 3 माइनस 5 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 0. तो ये सेटिस्फाई होगा, इसलिए x की जगह 2, y की जगह 0 एंड z की जगह माइनस 3 पुट की. तो दिस इज 6 प्लस 2 लैम्बडा. ये तो 0 ही है, छोड़ दो इसको. तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 3 माइनस 12 लैम्बडा माइनस 5 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 0. तो लैम्बडा कितने तो है 2 लैम्बडा plus 4 lambda is 8 lambda minus 12 lambda is minus 4 lambda. 6 plus 3 is 9, 9 minus 5 is 4 plus 4 is equals to 0. So lambda is equals to कितना आ गया 1. अब ये lambda की जगह 1 पुट कर दो. पुट lambda is equals to 1 in this equations, equation 1 ही बोल दो इसको. So we get 4x माइनस y और प्लस 3z माइनस 5 प्लस 4, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, दैट इज योर आंसर. नोट कर लो इसको.